न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। दुर्गापुर महकमा अस्पताल के डॉक्टरों को मिली बड़ी सफलता। आदिवासी महिला के पेट का ऑपरेशन कर निकाला 5 किलो वजन का ट्यूमर, महिला की हालत स्थिर। आसनसोल में अवैध अतिक्रमण हटाने के बाद वहां होगा सौंदर्यीकरण। वोल्वो बस स्टैंड को सनरेले रोड या कुमारपुर ले जाने पर विचार। चितरंजन रेल इंजन कारखाना का नाम बदलने की मांग पर विरोध। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने की थी नाम बदलने की मांग। अग्निमित्रा पाल के चित्तरंजनेर पाয়ের तलाয় থাকতে হবে। प्रदेश के निजी अस्पतालों को मात देकर सरकारी अस्पताल मिसाल कायम कर रहे हैं। एक बार फिर दुर्गापुर महकमा अस्पताल के चिकित्सकों ने जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। हुगली के गुराब की एक आदिवासी महिला शेफाली टुडू करीब 3 साल से पेट के निचले हिस्से में ट्यूमर से पीड़ित थी। महिला 14 दिन पहले इलाज के लिए दुर्गापुर आई थी। डॉक्टर की सलाह पर उन्हें पिछले गुरुवार को दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिर खून की कमी को पूरा करने के लिए उसके शरीर में करीब 4 बोतल खून चढ़ाया गया। उसके बाद उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल के क्रिटिकल केयर यूनिट में स्थानांतरित कर दिया गया। 5 डॉक्टरों की टीम गठित कर ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद महिला के पेट के निचले हिस्से से 5 किलोग्राम वजन का ट्यूमर निकाला गया। डॉक्टरों ने बताया कि वह अब पूरी तरह से स्वस्थ है और दुर्गापुर महकमा अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धीमान मंडल ने कहा कि दुर्गापुर महकमा अस्पताल में डॉक्टर हमेशा सक्रिय रहते हैं। डॉक्टरों ने इस महिला के पेट के निचले हिस्से से 5 किलो वजन का ट्यूमर निकालकर मिसाल कायम की है। डॉक्टर संदीप मंडल ने कहा कि उप जिला अस्पतालों में इस तरह की सर्जरी विरले ही होती है। महिला की हालात गंभीर थी लेकिन सर्जरी सफल रही। शेफाली टुंडू ने डॉक्टरों का बहुत बहुत धन्यवाद किया। তারপরে পেশেন্টকে 4 বোতল রক্ত দেওয়া হয়, পেশেন্টকে সুস্থ করা হয়, তারপরে অপারেশনের প্ল্যান করা হয়। কিন্তু এই যে টিউমারের যে সাইজটা আপনারা দেখছেন, এটা প্রথমে এত বড় ছিল না। সবার প্রথমে এই টিউমারের যে সাইজটা ছিল সেটা 16 থেকে 18 সপ্তাহের মতো প্রেগনেন্ট ইউটারাসের অনুযায়ী আমরা বলি টিউমারের সাইজ, সেটা অ্যাকর্ডিং টু 16 to 18 উইক সাইজ ছিল। এই হিউজ গ্রোথটা হয়েছে লাস্ট 10 to 14 ডেজের মধ্যে। এই হিউজ মানে ফ্রম 16 to 18 উইক সাইজ থেকে প্রেগনেন্ট ইউটারাসের সাইজটা বেড়ে হয়েছে অ্যারাউন্ড 28 to 30 উইকস। অপারেশনের সময় দেখা যায় যে টিউমারের যে ইউট্রাইন ফান্ডাসটা সেটা দ্যাট ইজ রিচিং আপ টু দ্য লিভার বেড, এবং টিউমারটার অবশ্যই ঝুঁকি ছিল। আমাদের সঙ্গে আমাদের অজ্ঞান ডাক্তারবাবু ডক্টর আসমাউল আলম, ডক্টর সুমন রুদ্র, ওনারা অনেক আমাদেরকে সহায়তা করেছেন এত বড় অপারেশন একটা মহকুমা হাসপাতালে করার জন্য। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অপারেশনের সময় আমাকে অ্যাসিস্ট করেছেন আমাদের 2 জন পিজিটি, ডক্টর দেবারতী এবং ডক্টর তরল। এবং আমাদের সঙ্গে আমাদের সিনিয়র সার্জনরাও এখানে ছিলেন, তারা আমাদের হেল্পে ছিলেন। ডক্টর তীর্থপ্রসাদ চক্রবর্তী, ডক্টর কৌস্তব চ্যাটার্জি, এনারাও আমাদের সঙ্গে সাহায্যে ছিলেন। এরকম ধরনের পেশেন্ট অপারেশন আমাদের এখানে হয়েছে আগে। তা আমরা সবাইকে যেটা বলি পেশেন্টকে, যে পেশেন্টরা যদি আমাদের উপর রাখে, মানে আস্থা রাখে যে হ্যাঁ সরকারি হসপিটালে করা সম্ভব, তাহলে আমাদের ডাক্তারবাবুর যথেষ্ট এফিসিয়েন্ট এবং আমাদের হসপিটালেও সেই ধরনের ক্যাপাসিটি আছে যে আমরা এই ধরনের পেশেন্টকে আমরা পরিষেবা দিতে পারি। এই ধরনের সিরিয়াস অপারেশন মানুষের ভরসা বাইরে কিংবা বেসরকারি হাসপাতালে, তো সরকারি হাসপাতালে এই ধরনের অপারেশন কী বার্তা দেবে? আমাদের সরকার মানুষের, আমরা চাই যে মানুষ আমাদেরকে প্রথমে দেখাক, যে আমাদের হসপিটাল ডাক্তারবাবুর ভরসা আনুক, এবং আমরা এই মুহূর্তে যে হসপিটালের যে পরিস্থিতি আছে আমরা পারবো এই ধরনের সাফল্যের সাথে অপারেশনগুলো সাকসেস করতে। প্রায় 3 বছর বললাম যা হয়েছে ব্লিডিং হতো। বলছি এই যে এত বড় হয়ে গেছে বুঝতে পেরেছেন? না, ওর আগে ছোটই ছিল, অত বড় ছিল না। কতদিন এমনি বড় হয়েছে? এই যে ডাক্তারবাবুর কাছে দেখার পর, ব্লাড নেওয়ার পর 1 সপ্তাহ পরে এরকম বড় হয়ে গেল। কতদিন থেকে আপনার সমস্যা ছিল? 3 বছর থেকে। বলছি এখন কেমন লাগছে, এখন কেমন আছে? এখন ভালোই আছে, ভালোই লাগছে। জেলা পরিষদে হলো এটা ডাক্তারবাবুকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार की सुबह आसनसोल के गिरजा मोड़ से सेंट जोसेफ स्कूल के सामने के इलाके का दौरा किया।
मेयर के साथ डिप्टी मेयर वसीमुल हक, नगर निगम आयुक्त राहुल मजुमदार, RK श्रीवास्तव समेत निगम के अन्य इंजीनियर भी थे। बता दें कि हाल ही में आसनसोल नगर निगम ने GT रोड के साथ इस क्षेत्र में अवैध निर्माण और अवैध कब्जेदारों को बेदखल करने का काम किया है, लेकिन हटाए गए दुकानदार अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। अब आसनसोल में GT रोड पर गिरजा मोड़ से चेली डंगाल में शताब्दी पार्क तक सड़क के दाईं ओर से अतिक्रमण हटाने की मंजूरी दे दी गई है। आसनसोल नगर निगम इस जगह पर सौंदर्यीकरण के लिए सड़क के दाएं तरफ पार्क, बाईं तरफ हटाए गए 49 दुकानदारों को पुनर्वास कराने का निर्णय लिया है। उनकी सूची नगर निगम अथॉरिटी पहले ही तैयार कर चुकी है। वहीं आसनसोल नगर निगम द्वारा GT रोड पर चेली डंगाल में मौजूद वोल्वो बस स्टैंड की स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई है। उसके लिए नगर निगम के द्वारा 2 क्षेत्रों की पहचान की गई है, एक सेंड्रेले रोड या विवेकानंद सारणी पर HLG अस्पताल के सामने, दूसरा GT रोड पर कुमारपुर में मनोज सिनेमा हॉल के पास। इस मामले पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए बस मालिकों को अगले सोमवार को आसनसोल नगर निगम में एक बैठक के लिए बुलाया गया है। यह जानकारी मेयर विधान उपाध्याय ने शनिवार को दौरा के दौरान दी। আমরা ভিজিট এলাম, এগুলো পরিষ্কার করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, কারণ এখানে আমরা একটা সুন্দর পার্ক বানাবো এই জায়গাটাতে, লোকোটে সিগন্যালের রাইট সাইডে, আর লেফট সাইডটাতে আমাদের যে রাইট সাইডে যারা দোকানদাররা ছিল তাদের লেফট সাইডে আমরা দোকান করছি। যতজন ছিল এখান থেকে একদম আমাদের শতাব্দী পার্ক করছে 49 49 সেট 49টা দোকান, 49টা দোকান ওখানে আমরা করেছি। আর এখানে এমনি পার্ক এটা সুন্দর পার্ক থাকবে, যাদের দেখতে সুন্দর লাগে, জায়গাটা ভালো লাগে, আর যাদেরকে হাঁটলো যারা তাদেরকে দোকান ওখানে ব্যবস্থা করবে, মানে পুনর্বাসন ওখানে পুনর্বাসন ওদের দোকান ওখানে বানিয়ে দেওয়া হবে সুন্দর করে, তারা সুন্দর লাগবে, ওদের দোকানও ভালো চলবে, আমাদের জায়গাটাও দেখতে ভালো লাগবে। ভলভোদের নিয়ে কি পরিকল্পনা? কোনটা? ভলভো বাসকে আমরা ওই জায়গাটাতে ভলভো বাস যদি দাঁড়ায় তো একটা ভলভো বাস দাঁড়ালে টাইম নিয়ে নিচ্ছে 10 মিনিট, এবং সেখানে কিন্তু মানুষ জ্যামে পড়ে যাচ্ছে, রাস্তাটা জ্যাম হয়ে যাচ্ছে। তো ওটা আমরা চেষ্টা করছি, হয় HLGর সামনে আমরা একটা জায়গা স্পট দেখেছি ওটা, আর নাহলে মনোজ টকিজের সামনে 2-3টা জায়গা দেখেছি। আমরা সোমবার দিন ডাকবো ওদের বলে দেবো। गौरतलब है कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने बिना पुनर्वास की बेदखली अभियान के कारण और केवल एक जगह अभियान होने का विरोध किया था। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहां मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल कोर्ट में शनिवार की सुबह मवेशी तस्करी मामले में अब्दुल लतीफ पेश हुआ। इसी वक्त सीबीआई का एक प्रतिनिधि मंडल आसनसोल सीबीआई कोर्ट पहुंचा। अब्दुल लतीफ को 27 फरवरी को गाय तस्करी मामले में आसनसोल सीबीआई कोर्ट में 15,000 रुपये के निजी मुजरके पर जमानत मिली थी। लतीफ ने उस दिन कहा था कि वह जाँच में पूरा सहयोग करेगा। इस बीच गाय तस्करी मामले में आसनसोल सीबीआई कोर्ट में लतीफ की सुनवाई जारी है, लेकिन आसनसोल कोर्ट के वकीलों ने एक वकील की मौत पर शोक व्यक्त किया। नतीजतन शनिवार को अदालती कार्रवाई निलंबित कर दी गई। इस वजह से अब्दुल लतीफ को भी वापस जाना पड़ा। हालांकि इस मामले में अब्दुल लतीफ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन अब्दुल लतीफ का नाम राजू झा मर्डर केस में भी सामने आया है, लेकिन अभी तक पुलिस अब्दुल लतीफ से कोई पूछताछ नहीं की है। देखना यह है पुलिस राजू झा हत्याकांड में अब्दुल लतीफ से पूछताछ करती है या नहीं। कथित तौर पर भाजपा विधायिका अग्निमित्रा पाल ने कुछ दिन पहले चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के उच्च प्रबंधन से मिलकर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोकोमोटिव वर्क्स रखने की मांग की थी, लेकिन बंगला पक्ष नामक संगठन इससे नाराज है। उसने विरोध में शनिवार को आसनसोल के BNR से एक बाइक रैली निकालकर विरोध जताया। यह बाइक रैली GT रोड नियामतपुर होते हुए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कार्यालय गेट पर समाप्त हुई और वहां प्रदर्शन किया। इस मौके पर बंगला पक्ष के प्रदेश महासचिव गौरांग चट्टोपाध्याय ने कहा कि देशबंधु चितरंजन दास बंगाल के गौरव है, उनके नाम पर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम रखा गया है। चितरंजन दास ने कभी भी दिल्ली के सामने माथा नहीं टेका, वह हमेशा बंगाल के बंगालियों के लिए लड़ते रहे। गौरांग चट्टोपाध्याय ने अग्निमित्रा पाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अग्निमित्रा पाल कुछ दिन पहले चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने की मांग की थी। दरअसल वे दिल्ली की दलाल है। पहले 2018 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स से चितरंजन दास की मूर्ति हटाई गई। 2022 में चितरंजन दास की जन्मदिन पर हॉलिडे खत्म किया गया। अब कारखाने का नाम हटाने की मांग की जा रही है, लेकिन बंगला पक्ष बंगाल की माटी पर बंगालियों का अपमान नहीं सहेगा। अगर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का नाम बदला गया तो बंगला पक्ष इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। बांगला ও বাঙালির গর্ব চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যিনি কখনো দিল্লির কাছে মাথা নোয়াননি, যিনি চিরকাল বাংলা ও বাঙালির জন্য মাথা উঁচু করে লড়াই করে গেছেন, তার নামাঙ্কিত এই চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস। এই অগ্নিমিত্রা পাল যে আগে জামাকাপড় ডিজাইন করত, সে এই যে ভারতবর্ষ এবং বাংলা তথা দক্ষিণ এশিয়া সেখানকার রাজনীতি যে ডিজাইন করত, তার নাম চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস থেকে মুছে দিতে চায়, প্রকাশ্যে বলেছে। কি মনে করে অগ্নিমিত্রা পাল বলছে যে তার এই নাম সে শ্যামাপ্রসাদের নামে করতে চায়। শ্যামাপ্রসাদ নাকি চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস করেছিল। সে চিত্তরঞ্জনকেও জানে না, চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসের ইতিহাসটাকেও জানে না। 40-এর দশক থেকে প্ল্যানিং, খসড়া ইত্যাদি সব হয়েছে। আর চিত্তরঞ্জনকে এই কথাটি যে চিত্তরঞ্জনের নাম চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস থেকে মুছে দেবে, এই কথাটা যদি বলা হতো আজকে মহারাষ্ট্রে যে শিবাজির নাম শিবাজীনগর থেকে মুছে দেবে বা ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাল থেকে মুছে দেবে, কি হতো? অগ্নিমিত্রা পালের অগ্নি আলাদা আর মিত্রা আলাদা হয়ে যেত। অগ্নিমিত্রা পালের অগ্নি আলাদা আর মিত্রা আলাদা হয়ে যেত। আমরা সেটা চাই না। আমরা তাকে হুঁশিয়ারি দিতে এসেছি, কারণ আমরা এর আগে সে যেহেতু বাঙালি ঘরে জন্মানো,
আমরা বলেছিলাম ক্ষমা চেয়ে নাও, 48 ঘন্টা, আজকে 48 ঘন্টা পূর্ণ হলো, সে ক্ষমা চায়নি। অগ্নিমিত্রা পাল মনে করেছে সে তার দিল্লির যারা তার বস রয়েছে তারা তাকে বোধহয় ঠেলা দিয়ে বাংলার মাটিতে চিত্তরঞ্জন দাসের দেশবন্ধুর থেকেও ওপরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে, সেটা যে নয়। বাংলার মাটিতে অগ্নিমিত্রা পালকে চিত্তরঞ্জনের পায়ের তলায় থাকতে হবে, সেই জিনিসটা প্রমাণ করতে আজকে বাংলা পক্ষর বাইক মিছিল। অগ্নিমিত্রা পালের এখানে কোনো গলা নেই, তার ভেতর থেকে বাংলা ও বাঙালির শত্রু হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী বিজেপির তার যে প্রভুরা তারা কথা বলছে, যেহেতু মেয়ের বডিতে ভর করেছে তাই মেয়ের মতো গলা বেরোচ্ছে, আর কিছু নয়। মনে করছে চিত্তরঞ্জন দাসের নামের একটা অক্ষর যে CLW থেকে মুছবে, বাংলা পক্ষ তাদের বাংলার মাটি থেকে তাদের পরবর্তী 14 প্রজন্মকে মুছে দেবে, তাদের পরবর্তী 14 প্রজন্মকে মুছে দেবে। দুজনই তো বাঙালি। কে দুজন বাঙালি? বলছেন যে যার নামে এখন নতুন করা হবে তিনিও তো, যার নামে একজন নতুন করা হবে বাংলার মাটিতে বাঙালি ঠিক করবে, অগ্নিমিত্রা পাল নামক দিল্লির দালাল ঠিক করবে না। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन दी फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत, NH2, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। कचरा निस्तारण प्रबंधन और स्वच्छता मिशन निर्मल बंगला के तहत आसनसोल शहर को स्वच्छ बनाने को लेकर शनिवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने एक बैठक की, जिसमें उपमेयर वसीमुल हक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और नगर निगम के आयुक्त राहुल मजुमदार के साथ ही मेयर परिषद सदस्य, सभी बोरो के चेयरमैन और UDMA के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के संबंध में बताते हुए निगम आयुक्त राहुल मजुमदार ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता मिशन निर्मल बंगला के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर आज बैठक की गई।
আজকে আমাদের এখানে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে এবং স্বচ্ছ ভারত মিশনের আন্ডারে যে মিশন নির্মল বাংলা আছে তাই নিয়ে তার রিভিউ প্রোগ্রাম হলো। ইউডিএমএ ডিপার্টমেন্ট থেকে অফিসিয়ালসরা এসেছিলেন কী করে আসানসোলকে এবং ভবিষ্যতে দুর্গাপুরকেও গার্বেজ फ्री सिटी करा जाए। मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल शहर को स्वच्छ बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। কি বিষয় না আসানসোলকে যেভাবে চারিদিকে স্বচ্ছ বাংলা করার জন্য যেমন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জায়গায় করছেন, অনুষ্ঠান করছেন, তো ঠিক সেই কারণে আসানসোলকে স্বচ্ছ করার জন্য আজকে মিটিংটা হয়েছে। প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সাহেব ছিলেন এবং আমাদের কমিশনার সাহেব ছিলেন, আমরা ছিলাম, চেয়ারম্যান সাহেব ছিলেন, সবাই ছিল, সমস্ত এমএমআই ছিল, আমাদের বড় চেয়ারম্যানরা ছিল। তো কীভাবে করা যাবে সেটা নিয়ে আলোচনা ছিল। वहीं वसीमुल हक ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के सभी 106 वार्डों में कचरा निस्तारण प्रबंधन को लेकर डोर टू डोर कचरा संग्रह करने को लेकर बैठक की गई है। 106 ওয়ার্ডে নোংরা পরিষ্কার জন্য আর মানে কোনো জায়গায় ডাস্টবিন থাকবে না, সে মার্কেট হোক বা বাড়ি হোক, সবাইকে ডোর টু ডোর যে কালেকশন হিসাবে আছে তাকে ডোর টু ডোর কালেকশান দিতে হবে। সেটা সেগ্রেগেশনের যে সিস্টেমটা সেটা হবে 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে যে মার্কেট প্লেস আছে যা যে সেই জায়গাগুলোকে গার্বেজটা এবার নেক্সট আমরা ডোর টু ডোর কিন্তু 30% শুরু করে দিচ্ছি। মার্কেট প্লেসটা হয়নি, সেটা নিয়ে একটা আলোচনা যে 20 দিন মধ্যে আমরা মার্কেট একটা মডেল তৈরি করব যে মার্কেট গার্বেজগুলো যে সবজি বাজারটা সবজি করে রাস্তা ফেলে চলে যায়, ড্রেনে ফেলে চলে যায়, মাছওয়ালা মাছ বিক্রি করে ফেলে চলে যায়, সেইগুলোকে কীভাবে খোলা যায়। आसनसोल शिल्पांचल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हज के लिए रवाना होंगे, इसलिए हज पर जाने वाले व्यक्तियों का बानपुर के संप्रीति भवन में टीकाकरण हुआ। इस मौके पर यहां पश्चिम बर्धमान जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक, 84 नंबर वार्ड के पार्षद सह 6 नंबर बोरो के चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार, पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अफरोज उपस्थित थे। इन सभी के निगरानी में यहाँ पर हज पर जाने से पहले श्रद्धालुओं का टीकाकरण हुआ। गौरतलब है कि पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में कुल 330 यात्री हज के लिए रवाना होंगे, जिनमें से 230 को आसनसोल में और बाकी हज पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण दुर्गापुर में होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम बर्धमान जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हज पर जाने से पहले सरकारी निर्देशों के अनुसार यहाँ पर मेनिनजाइटिस और खसरे की टीका लगाया गया। जी आज हाजी लोग का वैक्सीनेशन हो रहा, हाजी लोग का वैक्सीनेशन प्लस हेल्थ चेकअप कार्ड जो है वो फ्री हो रहा और उन लोगों को वैक्सीनेशन कार्ड लेके जाना पड़ता है। वैक्सीनेशन बिना वैक्सीनेशन का उन लोग को एंट्री नहीं मिलता, तो हर साल ऐसा ही होता है, आज भी हो रहा। आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि हज पर जाने वाले यात्रियों को एक स्वास्थ्य कार्ड भी दिया जाएगा, जो हज पर जाने से पहले देखा जाएगा। 2023 में जो हज के लिए जा रहे हैं उन लोगों के मेडिकल कार्ड और वैक्सीन का प्रोग्राम जो है यहाँ पर सीएमएस साहब के नेतृत्व में ऑर्गेनाइज किया गया है। इस आसनसोल के बाराबोनी, आसनसोल, रानीगंज या दर में आपका कुल्टी, ये जो इतराफ़ के इलाके हैं, यहाँ से तकरीबन 200 से अबव जो है हज्जाज कराम जाएंगे, उनके लिए यहाँ वैक्सीन हो रहा। और पश्चिम बर्धमान का ही एक हिस्सा जो रानी अंडाल के साइड का है, उधर में दुर्गापुर सिजोनी में, दुर्गापुर लौदोहा, ये जो अंचल पंडेसर के जो लोग हैं वो लोग दुर्गापुर का सिजोनी हॉल में उन लोगों के लिए वैक्सीन का आज ही के दिन में वहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।